Good morning, children. Today we are study about the magnetic field lines in the circular loop and also Fleming left-hand rule. So first of all, I just repeated the previous class. Direction of magnetic lines of force depends on the direction of current, and number of lines of depends on the magnitude of current. And already I have given the idea that when already given by scientists that when circular loop uh, formed and current passes through it, then the magnetic field strength increases, or magnetic field induction due to the circular coil of the radius r. Center of the coil, at the center of the coil is mu 0 I divided by 2r Weber per meter square. Or this given idea of the solenoid, when number of turns increases, यानी कि coil wrapped in number of turns and current passes through it, it behaves like a bar magnet, and the direction of magnetic field depends on the current, and magnitude of the current increases the number of magnetic lines of force, means magnetic field. Number of turns increases the number of magnetic field. Material of core also depends in magnetic field in the solenoid. Generally solenoid is used in starter of the vehicle, and yeah, here mu equal to k mu 0 and mu 0 equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 Tesla per ampere meter, and K is the relative permeability. Okay, so this give an idea about the solenoid and how its magnetic field increases here. If there is a long solenoid of radius r meter carrying current I ampere in which n number of turns, then per unit length the magnetic field induction at the midpoint of the solenoid is mu 0 in, and mu is 0 is the permeability and I is the current, n is the number of turns. एक बात ये देखा गया, दैट इज माने कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अंदर में तो कॉइल के अंदर में तो बढ़ जाता है, लेकिन बाहर में जैसा का तैसा ही रहता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं करता है. ये मार्केबल बात है ना, कि नंबर ऑफ टर्न्स अंदर तो बढ़ जाता है लाइंस ऑफ फोर्स. क्यों? क्योंकि चारों ओर से अंदर जाता है, लेकिन बाहर की ओर नहीं बढ़ता है, सब एक ही डायरेक्शन में होता है. और इसका भी आपको बता चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड. अब कहता है कि एम्पियर ने एक अलग से लॉ दिया, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस ने जैसे दिया था. इट स्टेट दैट लाइन इंटीग्रल integration of b dot dl for a closed curve is equal to the mu 0 times of the current I through the area bounded by the curve. यानी कि जिस एरिया में है और उसका तो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का mu 0 I. अब एक तुम लोगों का ये माने जीके का है क्वेश्चन ही समझो कि when solenoid is made of long coil and joined in circular loop, then it behaves like endless solenoid, and that is called toroid. टोरॉइड के बाद आप लोगों को आता है कि अगर कोर को अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस का बना दिया जाए तो इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल पावरफुल मैग्नेट. So if an insulated wire simply wrapped around the cylindrical object and current passes through it, then it behaves like a bar magnet and it is called solenoid. But if the solenoid whose core is made of soft iron is called electromagnet. और इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी वही बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द magnetic field depends on the magnitude of current. Direction of the magnetic field depends on direction of current. Magnitude of magnetic field also changes with the number of turns, and magnetic field strength increases with the material of core if it is of magnetic substance. Electromagnet is the magnet which runs on the electricity. Unlike permanent magnet, the strength of the electromagnet can easily be changed by changing the amount of current and changing the direction. The poles of electromagnet can even reverse by the reversing the flow of electricity. Uses of electromagnet: electric bell, dynamo, transformer, telegraph, telephone, electric alarm, etc.
और ये इलेक्ट्रिक व्हील का देख रहे हो, यहाँ पे ये आर्मेचर है और ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया है और ये एक आयरन का सब्सटेंस है और जो कि ये स्टील बॉडी के साथ ये पिन से टच कर रहा है और जब ये करंट पास करता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है और ये इसको अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, ये जो गोंग है वो आपका गोंग, ये जो हैमर है ये गोंग पर स्ट्राइक करता है और ये स्ट्राइक करने से घंटी बजती है, लेकिन जैसे ही ये इधर आता है इसका कनेक्शन टूट जाता है, करंट पास करना बंद कर देता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से हट जाता है यानी डीमैग्नेटाइज हो जाता है और तब फिर ये आपस वापस चला जाता है, वापस चला जाता है, फिर टच करता है, फिर मैग्नेटाइज हो जाता है और फिर अट्रैक्ट करता है और इस तरह से घंटी बजती रहती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है कि अगर दो मैग्नेट, तुम लोग को अभी बताया दो मैग्नेट होता है तो या तो रिपल्सन होता है या अट्रैक्शन होता है, तो दो मैग्नेट अगर हम रख दें तो दो मैग्नेट के यहाँ पे नहीं कहा गया कि एक मैग्नेट हो और एक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं तो उसके कारण परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और दो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो नेचुरली उसमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन के कारण उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, मूवमेंट होगा और दैट इज कॉल्ड फोर्स। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तुम लोगों को मैंने एकदम क्लियर हो गया कि एक मैग्नेट, दो मैग्नेट अगर हम लोग सामने लाते हैं तो नेचुरली दोनों मैग्नेट के बीच में या तो रिपल्सन होता है या अट्रैक्शन होता है और उसके कारण उस ऑब्जेक्ट में, जो भी दो ऑब्जेक्ट है उसमें से एक को कोई ना कोई अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, यानी कि एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण काउज हो रहा है। तो कह रहा है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रख देते हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर, अभी बता चुके परपेंडिकुलर में सर्कुलर रूप में लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो नेचुरली क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा और जो लाइटर रहेगा वो मूव कर जाएगा, है ना। तो नेचुरली कॉइल ही लाइटर होता है और कॉइल ही मूव करता है और ये हम लोग इसको अच्छे से समझ लो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है, इफ बी इट स्ट्रेच मिडिल फिंगर और सेंटर फिंगर, इंडेक्स फिंगर या और फोर फिंगर एंड थंब perpendicular to left hand of that perpendicular to each other, then a current passes through the center finger, field is in the direction of forefinger, then thrust created in the direction of thumb, that is the Fleming left hand rule। यानी लेफ्ट हैंड के हम तीनों ही फिंगर्स को स्ट्रेच कर दें एक दूसरे से परपेंडिकुलर एंड करंट पास करें सेंटर फिंगर, फील्ड होगा इसके डायरेक्शन में और ये आपका थंब के डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट होगा। तो ये फ्लेमिंग ने कहा और इससे क्या हो गया, हम लोगों को एक हुआ कि हम फोर्स क्रिएट कर सकते हैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड के कारण और इसी को कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और फ्लेमिंग ने इसे बहुत अच्छे से लेफ्ट हैंड रूल से समझाया। यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ और साउथ पोल है, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट इससे पास कर रहा है और देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप हो गया। तो कहने का मतलब इस तरह से हम कोई भी आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में करंट कैरिंग कंडक्टर को तो मूव करा सकते हैं और इस तरह से बहुत सारे खिलौने बनते हैं, बहुत सारे अब आपका जैसे मोटर, जितने भी मोटर हैं, चाहे वो पानी वाटर पंप चल रहा हो, चाहे वो फैन चल रहा हो, चाहे वो मिक्सी चल रहा हो, चाहे वो आपका वॉशिंग मशीन चल रहा हो, सब में आपका ये मोटर ही इस तरह का काम कर। देखिए ये करंट है, ये आपका आर्मेचर है जिसमें कि करंट पास करा रहा है, ये आपका ब्रशेस है, कार्बन ब्रश है जो कि टच कर रहा है, ये कम्यूटेटर है, हाफ हाफ मतलब स्प्लिट रिंग कहते हैं इसको, हाफ कम्यूटेटर है। और ये क्या होता है, जब आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये आपका वर्क करता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ, तो जिधर से फिंगर निकलता है वो आपका करंट के लिए पॉजिटिव होता है और जहां नॉर्थ पोल के किया जाता है, तो नॉर्थ और साउथ है तो नॉर्थ और साउथ, और करंट का डायरेक्शन इधर है तो इसका मतलब ये जो है ऊपर की ओर जाएगा और इधर उल्टा हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड तो यही है लेकिन करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया तो ये छोर नीचे जाएगा, इस तरह से जाता है। जैसे ही यहाँ पे आता है, इस ये पोर्शन आता है तो क्या होता है, इसका कनेक्शन
टूट जाता है, कनेक्शन टूट जाता है तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है, डीमैग्नेटाइज होता है लेकिन मोमेंटम के कारण ये आगे बढ़ जाता है। अब ये वाला इसमें टच करेगा, ये छोर पीला वाला टच करेगा और इस तरह से आपका अब ये वाला छोर ऊपर आएगा और इस तरह सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये इस तरह से आपका मोटर जितना वर्क करता है। फंक्शन ऑफ आर्मेचर, insulated coil wrapped around the soft iron kept in magnetic field. When current passes through it, it behaves like electromagnet and experiences a force and starts to rotate. Commutator or split ring, it touches the carbon brush and helps to the flow of the current through the armature and also change the direction of current and continue the rotation of armature in magnetic field. Carbon brush, it is connected with the electrical circuit and touches the commutator to supply the current. Motor works on the Fleming left hand rule and fan, mixie, these are the अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे मोटर का फंक्शन और पार्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द मोटर और इस तरह से हम लोग